खेत में काम करा बस इन मारी गोली लागी इन आवाज़ आई नहीं नाटा लार पीछू फिर 3 किलोमीटर बस भी गोली लगा दी गोली लगाई बस मेलार नाटा मान बस भी चेत हो कौन मान टेढ़ घात कर लिए बड़ा की जीव दया पालनी रूक लीला नहीं घावे अजर जरे जीवत मरे तो वा स्वर्ग में जावे। मारो विष्णु को धर्म बिंग कारने के इंग कारने जान दे दो जिन बिंग कारने भी तो गोली लगा दी बड़ा में क्यों बीत क्या रही It is not Fata Morgana, not a mirage effect or illusion of thirsty, tired traveler moving across the desert. This is a real pond, real grass, birds and wildlife as you see them. They won't disappear despite the fact that we are in the heart of Thar desert of Rajasthan. The land of unbearable heat, of no rain, no fertile soil. With the difference that here, nobody cuts green trees, so they grow freely, spreading shade around. People don't mind if deer eat their precious crop. In fact, many of them die trying to protect forest and wildlife. At this place, preservation of nature is a religion. Welcome to the land of Bishnois, people who follow 29 commandments. They sing together and they sing together. राजस्थान में ऐसे धरातल पे बसे की आवाज आई मैं तुम्हारा से बना सकता आए बच्चे आ जाओ अभी तुम शुरू कर जा आजकल हमारे समाज में हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णु बने। The story of Bishnois started in 1451 when Guru Jambeshwar was born in a Rajput family in a village of western Rajasthan. As a boy, he was taking family herds out to graze. There wasn't much fodder or grazing lands, but Jambeshwar observed that wherever there were trees and shadow, grass could grow and survive the scorching sun. He also noticed that the animal droppings fertilized the land, causing more grass to grow. Trees and bushes were actually windbreakers, so the wind could not blow this new life away. The young Jambeshwar realized the self-renewing cycle of nature, which works as a network made of all living things. If he could spread it, all land would be greened. इस समय गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा कि भी प्रकृति से प्रेम करो, और जो प्रकृति से प्रेम करेगा तो प्रकृति मनुष्य पर मेहरबान होगी और मनुष्य सुरक्षित रहेगा इस धरती पर। इसलिए प्रकृति से प्रेम करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है, ये गुरु जम्बेश्वर भगवान का। और जीव और दया करो, जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गावे।
जीवों पर दया करो और हरे पेड़ों को मत काटो। अगर ये तुम करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। According to the legend, when Jambeshwar was 25, a severe drought hit the region. After 10 years, not a bit of grass was left for cattle. In desperation, people hacked down the trees to sell the wood. The birds and wild animals were also hunted and killed for meat. Young Jambeshwar was deeply concerned witnessing dying cattle, the vanishing wildlife and the starving children. Images of death were haunting him day and night. Finally, at the age of 34, he had a vision. He saw a man quarreling with nature, destroying the earth that sustained him. He saw a man intoxicated with his own power, polluting the world around him. It had to be stopped, and he knew how. हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णु ही बनाए थे। वे पहले विष्णु ही नहीं थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 1542 में बीकानेर ज़िले के पास में नोखामंडी तहसील में मुकाम गांव है, वहाँ विष्णु समाज का परिवर्तन हुआ था। तो हमारे को वहाँ विष्णु ही बनाए थे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, और 29 नियमों का हमारे को पालन करते हैं, उसका नाम विष्णु ही होता है। गुणतेश धर्मंगी आकड़ी हृदय धरियो जोय, गुरु जम्बेश्वर ऐसे कहे फिर जन्म नहीं हो। वैसे विष्णु धर्म जो है हिंदू धर्म का ही एक परिष्कृत रूप है, सुचारू रूप से किया हुआ। जैसे जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि ये प्रहलाद जी का चलाया हुआ अपने पंथ है, प्रहलाद पंथ भी इसको कह सकते हैं। वैसे भगवान जम्बेश्वर को हुए तो अभी 500 साढ़े 500 वर्ष हुए हैं, तो ये हिंदू धर्म का ये एक अंग है, अलग नहीं है। Out of 29, 8 tenets have been prescribed to preserve biodiversity and encourage good animal husbandry. These include prohibition against killing the animals and cutting down green trees. 7 commandments provide direction for healthy social lifestyle, to live a simple, truthful life, to be content, be self-disciplined, pure, and avoid making false arguments or criticizing others. 10 principles are directed towards personal hygiene and maintaining good health, like drinking filtered water, taking daily bath, eating only vegetarian food, as well as prohibition of opium, alcohol, or tobacco. The rest 4 rules tell merely how to worship God. आए बच्चे आजा, दूध पिलाऊं तेरे को, आजा आजा आजा, आए बच्चे आजा, आओ सब बच्चे आओ। सूरज चलो चलो बच्चे चलो, ठहरो ठहरो ठहरो, अभी आपके सबका नंबर लगेगा। In Guru Jambeshwar Ashram in Janjiwal, there is one more special morning ritual, bottle feeding. आजा, हाँ बच्चे ले, तुम विकलांग है ना, तेरा नंबर पहले ले। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, ये काले का बच्चा है। इसमें 2 वैरायटी होती है हिरण में, राजस्थान के अंदर। ये काले का बच्चा है और ये चिंकारे का बच्चा है। इसके तो बड़े बड़े सींग होते हैं, लगभग 1.5-2 फुट के हो जाएंगे बड़ा होके। और ये जो आप धारी देख रहे हैं, ये इससे ऊपर ऊपर काला हो जाएगा, जैसे भी जवान होगा ये काला हो जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा होता है और बड़ी लंबी छलांग लगाता है, ये कुत्तों से हाथ नहीं आता है एकदम बड़ा होके। और वो बच्चा है वो चिंकारे का, वो इतना बड़ा नहीं होता, वो थोड़ा छोटा रहता है। ऐसे नहीं करना, छीनना नहीं, बारी बारी से पियो सब बच्चे। नहीं
ए बदमाश, नहीं तेरे को बाद में पिलाऊं। मैं तो मेरे मन से बना साधु, मेरे कोई धोखाधड़ी नहीं बनाया, तो मैं सोचा कि समाज को सुधारूं और वे नशा पता करते हैं उसको छुड़ाऊं और जीव संग सेवा करूं और मेरा शरीर कल्याण करने के लिए साधु बना। साधु बनने में तो हम खुश, बहुत अच्छे खुश हो रहे हैं। View from the top of the ashram hill in Janjiwal village is like the one from a fairy tale. There are trees stretching kindly shadow around. The birds and wild animals roam freely and happily. They are affectionately fed and protected by people. The place is like the abandonment of harmony between nature and men, the lost paradise to live happily ever after. More than ever, after the life-threatening experience of the outside, unprotected world. 3 दिन पहले की बात है, ये बच्चा आपकी माँ के साथ चल रहा था जंगल में, माँ इसके साथ में थी। तो क्या बात, 4-5 कुत्तों का झुंड आ गया। तो कुत्तों को देख के माँ तो भाग गई, ये भी भाग रहा था तो कुत्तों ने इसको घेर के पकड़ लिया। तो ये चिल्लाया जोर से, इतने में बस्ती के बच्चे आ रहे थे यहाँ अपने आश्रम में। तो बच्चों ने दौड़ के इसको छुड़ाया, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया इसको, कूट पीट के कुत्तों को। फिर छुड़ा के कुत्तों को भगा दिया, फिर यहाँ लेके आ गए मेरे पास। यहाँ ला के इसके को दवाई लगाई और टैबलेट भी दी और फिर अब दूध पिला रहे हैं। देखो, बचेगा तो भगवान की कृपा, मरेगा तो भगवान इच्छा। ये भी ऐसे आई थी, ये आपकी माँ से बिछुड़ गई थी। तो क्या हुआ, वो यहाँ पास में गांव में 10-15 किलोमीटर, तो वहाँ वो जो बिश्नोई आदमी है, बिश्नोई लोग हैं, वो इसको छुड़ा के ले गए थे घर पे। तो 10-15 दिन तो घर पे रखा। वहाँ पे ये थोड़ी बड़ी हो गई तो घर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कुत्ते भी आते हैं, बिल्ली भी मार देती है इनको। फिर यहाँ पे आपने ये बनाया हुआ तो यहाँ लेके आ गए। तो अब 3-4 महीनों से मैं इसको दूध पिला के बड़ी कर रहा हूँ। तो जैसे बड़ी होगी तो इसको बाहर निकाल देंगे, स्वतंत्र कर देंगे जंगल में। अभी तो छोटी है ये। खुशबू, वाह, शाबाश बच्चे, बस इतना बहुत, बस बेटा। सबसे बड़ा संकट जो आने वाला है वो है, पहले खेत बहुत बड़े बड़े थे, खेती करने वाला खेत, किसान के खेत लंबे चौड़े होते थे। तो वहाँ हिरण भी रह जाता था, मोर भी रह जाता था, तीतर भी रह जाता, हर तरह के वन्य प्राणी वहाँ रह जाते थे। अब धीरे धीरे जो भाई अलग अलग हो गए, खेतों में बंटवारा हो गया, तो खेत कम हो गए, ज़्यादा लोग बसने लगे। तो धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ पर इसका असर आ रहा है। और वो वाइल्ड लाइफ ज़्यादा खेतों में बंटवाने से पड़ोस के गाँव में चली जाती है, तो वहाँ शिकार हो जाता है, बिश्नोई क्षेत्र से बाहर जाते हैं, शिकार हो जाता है। तो ये संकट धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। The black buck is a graceful animal and is the only true antelope found in India. There was a time when herds of hundreds could be spotted, even on the outskirts of Delhi. Due to excessive poaching, hunting and habitat destruction, today black bucks roam only in areas where protection is provided. In fact, they are striving for survival under the current Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act. हम रात को सो रहे थे, रात को सोने के बाद में गन की आवाज़ आई। गन की आवाज़ सुन के हम सब, कई तो जूते पहरे, कई कपड़े नहीं पहरे, सब ऐसे ही भग गए। कोई लाठी लिया, किसी ने मोटरसाइकिल लिया, सब पैदल ही भग गए। उनको मालूम हुआ कोई आगे पीछे, तो वो वापस मोड़ दी, उसी रास्ते वापस मुड़ गया, स्पीड बढ़ा के भग गए। उधर घूम के उसका नंबर ले लिया, वो शहर में बढ़ गए। शिकार का सुनने उसका सारा सबूत मिल गया, तो हमारा समाज वाले सारे इकट्ठे हुए, फिर आंदोलन भी किया, उसको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार तो किया नहीं किसी ने।
In fact, the conviction rate is very low, and on account of this, even if the hunters are being convicted, then they are punished with a very less punishment. And on account of this, it is the cases are not being reached up to the high courts or up to the Supreme Courts, and therefore this implementation of law is not as effective as it should be. दो आवाज़ आई गन की, दो काला हरण मर रहे थे, तो हमने देखा हमारे भाई फादर सब साथ में थे, हमने देखा पूरी, बाद में सवेरे में हमारे पूरी समाज वाले सब लोग आ गए, सबने देख लिए कि दो काला हिरण मरे हुए हैं, दो बड़े बड़े सींगा वाले मरे हुए हैं। जाना जाना है खेजड़ली 363 शहीदों की याद दिलाना है। जाना जाना है खेजड़ली शीश झुकाना है, शहीदों की याद दिलाना है। हम यहाँ शहीदी स्मारक खेजड़ली शहीदी स्मारक, ये यहाँ घटना हुई, इसे विशेष है। यहाँ घास फूस नहीं उगते, ये विशेष जगह है, एक खून छींची हुई जमी है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ वृक्षों के लिए प्राण दिया था, इसीलिए ये जमी है, इसलिए हम मत टेकते हैं, ये पूजनीय जमी है। In the morning of September 1730, Amrita Devi, a Bishnoi woman and mother of 3 daughters, suddenly came to know of many people descending in their village. It was a senior officer of Jodhpur state with soldiers sent by the king to cut wood needed for the construction of a new fort. Gathered villagers urged the officer to stop chopping, as it was against the Bishnoi religion to cut or allow anyone else to cut green trees. Like soldiers elsewhere, the king's men followed their orders. At that very moment, Amrita Devi clanged to a tree. She said, "Sar saate ruk rahe, to bhi sast ho jaye." She was axed along with the tree. Her 3 daughters, Ashi, Ratni and Bagu, who also clung to the tree, were similarly hacked down. Following them, 363 Bishnois had given up their lives. For every fallen tree, a Bishnoi man, woman or a child laid down their life. जीवो और जीने दो। 530 साल पहले गुरुजी ने ऐसे कहा था, हरा वृक्ष न काटें, क्योंकि वृक्ष काटने से, वृक्षों की कमी होने से बारिश नहीं होगी, और हमारे यहाँ वृक्ष ये ओजोन मंडल यानी पृथ्वी पर सीधी पड़ेगी, तो उससे पृथ्वी उस्र हो जाएगी। इसी शब्द पर हमारे सब शहीद हो गए। वृक्ष पृथ्वी पर नहीं होगा तो हम नहीं बचे, ये जरूरी है। The saga of Kejarli is neither the first nor the last of Bishnoi action in defense of nature. It is still living tradition for us and also inspiration for others. Like in 1973, the famous Chipko movement started in Gadwal, where again women hugged the trees to resist the depredations of loggers and contractors. It too resulted in a ban on green felling in the Himalayan forests. सबसे पहला कारण दिया कि बिश्नोई जाति ज़्यादातर गांव में रहती है और लिटरेसी में बहुत कम थे, लिटरेसी नहीं के बराबर थी बिश्नोइयों में। इसलिए बिश्नोइयों का जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उपदेश दिए, अगर ये जो 3 उनके उपदेशों की पालना जो बिश्नोई समाज ने की, आज जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है, पेड़ों की रक्षा है, अगर दूसरा समाज करता तो पढ़ा लिखा समाज तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होने से
बिश्नोई समाज इस बातों को संसार के सामने रख नहीं सका। बिश्नोई लोग हैं सभी राजस्थान में ऐसे धरातल पे बसे हुए हैं, सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो यहाँ ज़मीन में पानी है नहीं, बारिश हुआ तो खेती होती है, तो बारिश तो आजकल 2-3 साल में एक बार होता है। तो उसके लिए बिश्नोई लोग हैं वो पहले से ही तैयार रहते हैं ड्रॉट का सामना करने के लिए, इसलिए वो दूसरा धंधा भी करते हैं, जैसे पशुपालन है, बहुत सारे पशु रखते हैं, उनका दूध निकालते हैं, फिर उसको बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरे बिजनेस भी करते हैं। दे आर नॉट वेटिंग फॉर ओनली फॉर रेन। बिश्नोई लोग जो भी कमाते हैं उसमें से ज़्यादा सेविंग करके वो अनवांटेड चीज़ नहीं खरीद के अपने के तकलीफ़ के अंदर काम आएंगे, इसलिए गहने बना लेते हैं या ज़मीन खरीद के रख लेते हैं, जो आगे भविष्य में यदि कोई ज़्यादा तकलीफ हो तो उसमें काम आ जाए। बिश्नोई के घर में बच्चा होता है तो उसको बच्चा होने के पैदा होने के बाद 30 दिन सूतक रखते हैं। फिर बाद में हमारा गुरु जम्बेश्वर भगवान का साधु संत लोग और गायना लोग, थापन लोग जो होते हैं उसी गांव के अंदर उसको बुलाते हैं। फिर बाद में उसको 30 दिनों के बाद में उसको पहल दिलाते हैं। पहल दिला करके मंत्र दे के उसको बिश्नोई बनाते हैं। धात गो जुब जो पिंड नवदश मास बालो रे घोर कुंड चरण होता सरी कृपा से भयो खिला जल से नहाया ताग्या मल विष्णु नाम सदाई निर्मल विष्णु नाम कांजल स्वा श्री गुरु जम्बे जी की कृपा। In Chalu ceremony, we welcome the newborn member of the community as well as receive back the mother. She is purified ritually with her belongings. The same receiving ceremony is performed for people returning from the prison or for those expelled by community. श्री गुरु जम्बे जी की कृपा से बालक विष्णु ओम स्वाहा। क्योंकि छोटी जाति है, पूरे देश में 60 लाख के आसपास आबादी टोटल बिश्नोई पूरे देश में तो नहीं के बराबर है, अगर देखा तो 0.1% भी नहीं पूरे देश में। तो अगर संगठित होकर के नहीं चलेंगे तो बिश्नोई के सामने बहुत बड़ा संकट है। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर होता है तो उसकी कंप्लाइंस नहीं होती, जितना हमने समाज में बैठ कर तय कर समाज के पंथों ने तो हम ये तय कर रहे हैं, उसके बाद में उसकी तुरंत कंप्लाइंस हुई और कहीं भी जाके कहने की आवश्यकता नहीं हुई। जब एक जगह से मीटिंग करके ऐलान कर दिया, उस ऐलान को मानते हैं लोग, इसलिए कि उनको फेथ है। दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंग टुगेदर। वो तो कहें एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे, तो हम कहते हैं इसका मतलब है कि ये हमारे इंटरेस्ट में बात है, तो उसको फॉलो करते हैं। आजकल हमारे समाज के सामने समस्या यूँ तो बहुत है, मगर अपने समाज संबंधी जो समस्या है, एक तो दिनों दिन ये तस्करी का धंधा बढ़ रहा है और दिनों दिन इसके ऊपर सरकार की ढिलाई की वजह से ये रोक नहीं लग रही है और दिनों दिन अपने समाज में बिखरा हो रहा है। समाज को संगठन में मजबूत करो और समाज को पढ़ाई के ओर ध्यान दिलाओ। ज़रूरी है लड़कियों की शिक्षा की। लड़कियों की शिक्षा नहीं होगी तो जब तक अपने समाज में ये सगाई सकपण है वो नहीं होंगे और नशा प्रवृत्ति का तो ये दिनों दिन बंद हो ही रहा है और हमने करीब करीब इसके ऊपर अंकुश पाया ही है। और छोटा मोटा है अभी नशे का है, शराब तस्कर का है, इसके ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समाज इसके ऊपर पूरा लगन से ध्यान देवे और किसी का भेदभाव नहीं रखकर इसके ऊपर पाबंद करें। जय बोलो जम्बेश्वर महाराज की जय। पंचौ साथरी गुड़ा विस्नयान का निर्णय
पहला नियम, विश्नोई समाज के अंदर मृत्यु भोज के रूप में खर्च, खींचड़ा, खेड़ा एवं चौरासी खेड़ा नहीं किए जाएंगे व अन्य सभा में अमल चाय बिल्कुल बंद रहेंगे। नंबर 4, विश्नोई समाज के लोग किसी प्रकार का शराब गुटखा नहीं बेचेंगे। कोई तस्कर दोबारा तस्करी करता हुआ पकड़ा गया तो 51,000 रुपया स्वरूप दंड देकर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। लड़कियां की शादी में मामेरा एक बार ही लिया जाएगा। लड़कियां किसी प्रकार का पैंट व टी शर्ट नहीं। ये निर्णय समाज ने आज ही लागू किया व आज ही कायम होगा। Today, Bishnois are spread over the western parts of Rajasthan and neighboring states. We are small in number, but fairly successful among communities living in the Thar Desert, trying to apply dignity and compassion to hard desert life. While the desert winds continue to blow, we are still faithful to instruction of our Guru and carry on Eco Dharma, the sacred duty of protecting the nature. या वाइल्ड लाइफ का जो सेक्रीफाइस करता है उसके लिए कोई सरकार की सहायता नहीं थी। हमने कहा कि उनको भी सहायता मिलनी चाहिए और उनको भी शौर्य पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान के वाजपेयी साहब ने ये तय किया कि नहीं 3% शौर्य पुरस्कार सैनिक क्षेत्र के अलावा गैर सैनिक क्षेत्र में जो वाइल्ड लाइफ के काम करते हैं उनको हम देंगे। विश्नोई कम्युनिटी है जो हिरणों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए, वनों के लिए अपना आत्म बलिदान दे देती है, इसलिए उनको शौर्य पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। तो सेना के बराबर का उनका पुरस्कार हो गया। जो गंगाराम ने काम किया है वही हम काम करते, पीछे हम नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो।